नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हम हर संडे बैंकिंग के किसी टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। इट्स माय ऑनेस्ट विश दैट you should get help from these videos to run your bank. Friends, you might be knowing last Sunday we talked about the willful defaulters and the preliminary issues of the guidelines which were issued by Reserve Bank of India in July 2024. And I'm sure not many banks have implemented these guidelines, and I had already made clear that this subject will be discussed on 3 Sundays, this being a second Sunday, on which we will be discussing about the particular circular and guidelines which the Reserve Bank of India has issued with an intention to ensure that the entire banking fraternity, to make it broader, all the lenders in the country should follow these procedures. All the lenders, those who have been regulated by Reserve Bank of India in terms of the lending operations, and to those all these circulars which are applicable, and couple of non-lenders have also been made mandatory. These instructions which were issued by Reserve Bank of India in July 2024, the instruction or the master directions are in respect of willful defaulters and large defaulters. Friends, I had already made it very clear what are the principal and fundamental concepts in the first part of this particular series. The two most significant areas where we are going to talk on this is about the identification committee and review committee, their roles and responsibilities. So this part we are going to look at the chapter 2 of that particular circular. We are going to discuss about the treatment of willful defaulters. Now here the treatment of willful defaulters, you have to understand that all those borrower accounts which are about 25 lakhs are required to be scanned and scrutinized, and Reserve Bank of India has stated its intention. And what is the intention? आपको बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी willful defaulters के बारे में करने के लिए कहा है, लेकिन वो ये बोर्ड पॉलिसी जब आप करोगे तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जो ट्रीटमेंट ऑफ willful defaulters के बारे में ये सर्कुलर में जो दी गई गाइडलाइंस है उसका कोई उल्लंघन न हो. Those should be imported in the board policy that you will be forming. What is the sentence that they are using? A lender shall identify and classify a person as a willful defaulter by following the procedure enumerated in these directions. इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन, ये जो मास्टर डायरेक्शन है, इसमें जो भी गाइडलाइंस दी गई है, you have to implement them, bring them into policy and then implement them and follow it regularly with whatever the time duration that has been prescribed at various places. This particular direction talks about it. The first part of this particular today's topic is talk about the mechanism of identification and classification of willful borrowers. मैंने आपको लास्ट संडे कहा था कि दिल में आ गया, किसी को willful defaulter की धमकी दे दी, उसको willful defaulter घोषित कर दिया. ऐसा नहीं होगा. ऐसा इसलिए नहीं होगा कि मैंने 2 वर्ड्स पे लास्ट एपिसोड में इंसिस्टेंस दिया था, या जिसको हम कहते हैं कि फोकस किया था. वो है डिस्क्रिशन, एंड द सेकंड वर्ड इज नेचुरल जस्टिस. यू एज अ लेंडर will have to ensure that a natural justice to the borrower is done by you. It is not something which you do. दिमाग में आ गया willful defaulter कर दिया, ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए. और जब प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस आती है तो इट इज़ लाइक अ कोर्ट हियरिंग. You are going to be sitting as a public officer. You are already a public officer. If you are running a bank, you are a director, officer, employee. As per the BR Act amendments, all you guys are public servants. That definition under the BR Act has already come. Way back in 2020, it was reiterated subsequently also. इसका मतलब ये है कि एज अ पब्लिक सर्वेंट, आप डायरेक्टर हो या CEO हो या MD हो, कोई भी हो, आपको नेचुरल जस्टिस की प्रोसेस कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है इन रिस्पेक्ट ऑफ willful defaulters. वाई द प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस? क्योंकि इसमें अगर बोरोवर आपने गलती से भी willful defaulter कर गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो कहीं से पैसे उठाने के लिए काबिल नहीं रहेगा. तो आपको बहुत ही समझ के, संभल के, अंडरस्टैंड करके, बोरोवर को अपॉर्चुनिटी दे करके उसको willful defaulter घोषित करना है. घोषित करने के बाद रिपोर्टिंग क्या है वो सब हम पार्ट
3 में देखेंगे. वी विल बी लुकिंग इनटू द reporting mechanism and all those mechanisms. Subsequently, even the role of the auditors of the bank we will be discussing in third part. Today we will be discussing about the mechanism of identification. उसकी process क्या होगी, मोटा मोटी रिजर्व बैंक क्या कह रही है, what they want you to do, we will be talking about that. मैंने आपको पिछले संडे कहा था कि आपको 2 कमिटीज़ बनानी पड़ेगी. एक होगी आइडेंटिफिकेशन कमेटी, जिसका प्रारूप कैसा होगा ये मैंने आपको बता दिया है. अ पर्सन 1 stage below CEO or MD will be the chairman and 2 persons below the chairman of that identification committee would be part of this committee. अभी इसमें ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल डिफॉल्ट की इस गाइडलाइंस में उन्होंने ये जो 2 कमिटीज़ हैं इनके रोल काफ़ी डिफाइन कर दिए हैं कि आइडेंटिफिकेशन कमेटी क्या करेगी और विलफुल रिव्यू कमेटी क्या करेगी. आइडेंटिफिकेशन कमेटी विल रिपोर्ट टू रिव्यू कमेटी एंड रिव्यू कमेटी बोर्ड कैन डिसाइड दैट रिव्यू कमेटी विल सबमिट रिपोर्ट टू द बोर्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अ विलफुल डिफॉल्टर, अ पर्टिकुलर बोरोअर एज अ विलफुल डिफॉल्टर. मैं विलफुल डिफॉल्टर इसी डेफिनेशन का, इसी वर्ड का इस्तेमाल पूरे सीरीज़ में करूँगा. इसकी वजह ये है कि इसमें पैरेलल हिंदी या मराठी वर्ड्स नहीं है. तो हिंदी में अगर आप गूगल में जाएंगे और विलफुल डिफॉल्टर ढूंढेंगे तो आपको ये डेफिनेशन मिलेगा कि इरादतन चूक करता, यानी इरादे से गलती करने वाला. दैट इज़ द हिंदी डेफिनेशन. मराठी में तो परफेक्ट डेफिनेशन आया नहीं है. मराठी में डेफिनेशन है जाणून बुजून डिफॉल्टर. दिस इज द डेफिनेशन, दैट इज व्हाट द गूगल इज टॉकिंग. So we all know what defaulter is, we all know what willful is. After saying that, ये जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी का रोल होगा, इसको ये बोरोअर अगर विलफुल डिफॉल्टर है उसकी जो डेफिनेशन उन्होंने दी है तो वो डेफिनेशन के हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है, उनकी पहली स्टेप होगी कि उनको लगता है, ये जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी के मेंबर्स उनको लगता है कि यार ये विलफुल डिफॉल्टर है. जो भी डेफिनेशन हमने लास्ट संडे में देखी है कि इसके पास पैसा है लेकिन ये पैसा नहीं भर रहा है, या इसने जो एसेट के लिए पैसा लिया था उसका इस्तेमाल नहीं किया, कोई दूसरा ही एसेट ले लिया है, या फिर डाइवर्जन ऑफ फंड्स है. सो ये जो विलफुल डिफॉल्टर के डेफिनेशन सर्कुलर में दी गए हैं, मेरे भी लास्ट संडे के वीडियो में आपने देखा होगा या सुना भी होगा. ये आइडेंटिफिकेशन कमेटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी 25 लाख के ऊपर के बोरोअर्स हैं उनको उन्हें स्कैन करना पड़ेगा. स्कैन करने के बाद में उनको अगर समझ में आता है कि एक बंदा है जो विलफुल डिफॉल्टर के डेफिनेशन में बैठता है, तो पहली स्टेप क्या होगी? पहली स्टेप होगी कि ये बोरोअर को शो कॉज नोटिस देना है. ये बोरोअर ये शब्द जो होगा, बोरोअर में इसमें सब पार्टनर्स हो गए, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, गारंटर्स हो गए, सब हो गए. विलफुल डिफॉल्टर का शो कॉज नोटिस इन सबको जाना चाहिए, इंक्लूडिंग गारंटर. और कंपनी के मामले में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के बोर्ड पे है, तो आपको ये देखना है कि ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव कंपनी का डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसका रोल ये विलफुल डिफ़ॉल्ट का जो उन्होंने कारनामा किया है उसमें है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, ये आपको देखना है. तो आसानी से क्या होगा कि आप उसको भी दे दो, शो कॉज नोटिस उसको भी दे दो कि भाई हम आपको विलफुल डिफॉल्टर क्यों ना घोषित करें. सम एंड सब्सटेंस ऑफ व्हाट योर नोटिस शुड कवर. अब ये नोटिस, ये समझो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, आपके पास नाम है, उसको भी दे दिया, तो यू हैव टू रेज एन ऑब्जेक्शन कि भाई मेरा इस डिसीजन से कोई ताल्लुकात नहीं है, कंपनी की ओर से आई एम नॉट कनेक्टेड. एंड इफ़ यू आर सेटिस्फाइड यू कैन इग्नोर हिम और रिमूव हिम फ्रॉम द विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट और द विलफुल डिफॉल्टर्स लिस्ट जो आगे जाके आपकी बनने वाली है. तो विलफुल डिफॉल्टर्स का आपको शो कॉज देना है. किनको देना है? जो भी इंचार्ज है मैनेजमेंट को, जो बोरोअर है आपका, उसके मैनेजमेंट के. ये पार्टनरशिप और प्रॉपर्टीशिप कंसर्न में ये कोई सवाल आएगा नहीं, क्योंकि वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसी को आपने दे दिया, बात खत्म हो गई. ये जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी है, उनको हम आपको विलफुल डिफॉल्टर क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स आपने लोकेट किया है उसके एविडेंसेस आपको सप्लाई करने पड़ेंगे. जैसे कि मैं एक कॉमन एग्जांपल हमेशा लेता हूँ, हमेशा लूँगा शायद, कि आपने हाउसिंग लोन दिया लेकिन बंदा BMW लेके आया,
आपने उसको हाउसिंग लोन दिया, लेकिन हाउसिंग लोन के बजाय वो पैसा उसने BMW लेने के लिए दिया। दैट्स अ विलफुल डिफॉल्टर एज पर दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डेफिनेशन। तो यू हैव टू गिव एन एविडेंस कि भाई आपने घर के बजाय गाड़ी खरीद ली है। दिस इज एन एग्जाम्पल थ्रू आउट वी विल ट्राई टू कैरी सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इट। तो शो कॉज नोटिस जब आप इशू करोगे, आपको ऑल मटेरियल जितना भी आपके पास एविडेंसेस है जिसकी वजह से आप इनको आप विलफुल डिफॉल्टर कह रहे हो, वो मटेरियल आपको देना पड़ेगा। डायरेक्टर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ये शो कॉज देने के बाद में ये जो बोरोर होगा ये सबमिशन देगा। सबमिशन क्या देगा कि भाई मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूँ, जो भी उसका कहना होगा वो देगा। वो सबमिशन देने के बाद में, वो सबमिशन एग्जामिन करने के बाद में आइडेंटिफिकेशन कमेटी को क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी है बेस्ड ऑन द सबमिशंस विच दे हैव गिवन। और ये सबमिशन उनके पास आने के बाद में, बोरोर का सबमिशन आने के बाद में आपको एक रिपोर्ट बनानी है, या जिसको रिजर्व बैंक कहते हैं एक प्रस्ताव बनाना है। यू हैव टू मेक अ प्रपोजल फॉर होम, टू द रिव्यू कमिटी। Review committee will have your CEO and MD and 2 professional directors of the board. This review committee के कंसिडरेशन के लिए आपको प्रस्ताव बनाना पड़ेगा और आपको ये रिकमेंड करना पड़ेगा कि भाई ये विलफुल डिफॉल्टर है, हमें लगता है ये विलफुल डिफॉल्टर है और इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करना चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने करना है। ये आइडेंटिफिकेशन कमेटी ने प्रस्ताव देने के बाद ये प्रस्ताव में उनको आप ये कमेटी उसको विलफुल डिफॉल्टर क्यों घोषित करना चाहती है उसका रीजनिंग देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि दिमाग में आ गया उसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू सब्सटेंशिएट योर केस बिफोर द रिव्यू कमेटी विथ ऑल द एविडेंसेस दैट यू आर हैविंग। ये रिव्यू कमेटी में देने के बाद में, रिव्यू कमेटी का प्रस्ताव जब आप बना रहे होंगे तब आपको ये जो बोरोर है इसके गारंटर से इनको आपको एडवाइजरी देनी पड़ेगी। क्या एडवाइजरी देनी पड़ेगी? पहले हो गया शो कॉज कि क्यों आपको हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं करें, फिर एडवाइजरी क्या, भाई हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने वाले हैं। दिस इज द प्रोसेस साइमल्टेनियसली, प्रपोजल हैपनिंग टू फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रिव्यू कमेटी। उसी समय आइडेंटिफिकेशन कमेटी इनको एडवाइजरी देगी। क्या एडवाइजरी देगी कि भाई इन वजह से दीज आर द रीजन फॉर विच वी आर गोइंग टू क्लासीफाई यू एज अ विलफुल डिफॉल्टर। उन्होंने सबमिशन दिया है, वो सबमिशन आपने कंसिडर किया, बोरोर का सबमिशन आपने कंसिडर किया, उसके बाद में आप उनको बता रहे हैं 2 ट्रैक मूवमेंट है। वन इज प्रपोजल टुवर्ड्स द रिव्यू कमेटी एंड 1 ट्रैक टुवर्ड्स एडवाइजरी कि भाई हम आपका विलफुल डिफॉल्टर क्यों ना घोषित करें। ये होने के बाद में ये जो बोरोर और गारंटर होगा उनको रिव्यू कमेटी के सामने हाजिर होने के लिए आप बुला सकते हैं कि भैया आप एक्सप्लेन करो कि हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर रहे हैं, इन वजह से हम क्यों ना घोषित करें आपको। द रिव्यू कमेटी हैज़ टू डू अ नेचुरल जस्टिस एंड हैज़ टू गिव हियरिंग टू द बोरोर कि भाई हम आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने जा रहे हैं, हमें ये लगता है कि आपकी ये गुनाह है, ये गुनाहों की वजह से जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम आपको विलफुल डिफॉल्टर क्यों ना घोषित करें, उसको हियरिंग दिया जाएगा। एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी देना ज़रूरी है जिसकी वजह से आपने नेचुरल जस्टिस किया है ये इस्टेब्लिश हो सके। अभी इसमें ये भी हो सकता है कि ये जो बोरोर है, गारंटर है, उसे मालूम है कि हमने गलत काम किया है, वो शायद ये जो अपॉर्चुनिटी पर्सनल हियरिंग की हो उसमें आए ही ना। यू हैव टू क्रिएट एन एविडेंसेस that the fellow has not availed the opportunity that is given by you and create an adequate evidence for that. रिव्यू कमेटी का काम ये है कि ये सब देखने के बाद, प्रपोजल देखने के बाद वो अगर बोरोर रिव्यू कमेटी के सामने आता है तो उसका जो कहना है वो सुनने के बाद रिव्यू कमेटी will come consider the proposal of identification committee for declaring the borrower as well as guarantor as a willful defaulter. अभी ये विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो प्रोसेस होगा ये तुम्हारे बैंक के इंटरनल ऑफिसर्स करने वाले हैं। अभी ये जब इंटरनल ऑफिसर्स करेंगे तो बाहर का कोई बंदा नहीं है, आपके अंदर के ही बंदे कर रहे हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट सॉर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसको आप एम्प्लॉय की इंक्वायरी करते हैं ना, उसी की तरह देखिएगा।
ऐसा हो सकता है कि हियरिंग देते वक्त रिव्यू कमेटी को लगे कि हियरिंग पूरा नहीं हो रहा है, सेकंड हियरिंग दो. देयर इज नो बार ऑन दैट. You have to conduct the proceedings of inquiry. The review committee has to ensure that it has discharged its duty properly and granted fair opportunity to the borrower. ये होने के बाद में गाइडलाइंस ये कहती हैं कि ये रिव्यू कमेटी के सामने जब आपको ये बोरोवर अपीयर होता है, he cannot bring a lawyer to defend him. Although this is a sort of hearing, but borrower or guarantor has to appear in person to defend his own case. रिजर्व बैंक का ये मानना है क्योंकि ये इन हाउस हो रहा है तो आपको लॉयर अलाउड नहीं है. ही कैन नॉट ब्रिंग लॉयर. उसके बाद में उसका हेयरिंग होने के बाद में रिव्यू कमेटी को डिसीजन लेना पड़ेगा एंड देन इट विल हैव टू पास एन ऑर्डर. उसको ऑर्डर पास करना है. क्या पास करना है? या तो इसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित करो या मत करो, जो भी डिसीजन है. मिडवे नहीं है, या तो ये विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है, बात खत्म. कई बार ऐसा होगा कि आइडेंटिफिकेशन कमेटी के सामने जब अकाउंट स्क्रीन करोगे, स्कैन करोगे, उसमें ये आइडेंटिफिकेशन कमेटी को लगेगा कि नहीं यार ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है या एक आध इंसिडेंस है, अदरवाइज द बोरोवर इज जेन्युइन. आइडेंटिफिकेशन कमेटी नीड नॉट रिपोर्ट टू रिव्यू कमेटी अगर वो किसी अकाउंट को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं करना चाहते हैं. ये गाइडलाइंस का सार है. आइडेंटिफिकेशन कमेटी को अगर लगता है कि इसको विलफुल डिफॉल्टर नहीं घोषित करना है, उसकी वजह है, द रीजनिंग. दे हैव टू डिसाइड विथ रीजन दैट व्हाई दे डोंट वांट टू गो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ विलफुल डिफॉल्टर एंड दिस हैज टू बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड. बिकॉज अगर आइडेंटिफिकेशन कमेटी विलफुल डिफॉल्टर अगर किसी बोरोवर को नहीं करना चाहती हैं, उनको रिव्यू कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं. उनको रिव्यू कमेटी के पास उसी वक्त जाना है जब उनका मन बन जाता है कि देयर इज enough substantial evidence to declare the borrower as willful defaulter. That decision will be taken by the review committee. Identification committee will be a recommending authority. That's all. तो ये आपको बात पक्की ध्यान में रखनी है. और अब इनको अगर लगता है आइडेंटिफिकेशन कमेटी को कि जो एविडेंसेस जो है वो पर्याप्त नहीं है या सब्सटेंशियल नहीं है, तो वो रिव्यू कमेटी को ऐसा नहीं रिकमेंड करके भाई हम इस बोरोवर को विलफुल डिफॉल्टर नहीं घोषित कर रहे हैं, प्लीज अप्रूव. नो, दैट इज नॉट द रूल ऑफ रिव्यू कमेटी, दैट इज द रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन कमेटी. ये आपको पक्का समझना है. और ये जब विलफुल डिफॉल्टर के बारे में आप बोर्ड की गाइडलाइंस करोगे तब इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है. आइडेंटिफिकेशन कमेटी एंड रिव्यू कमेटी, यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. द शो कॉज नोटिस ड्राफ्ट हैज़ टू बी सर्व्ड बाय समबडी. तो गाइडलाइंस ये कहती है कि आपका जो बोर्ड पॉलिसी होगा उसमें आपको एक स्पेसिफाइड पर्सन आपको इसमें देना पड़ेगा जो आइडेंटिफिकेशन कमेटी और रिव्यू कमेटी के कम्युनिकेशंस बोरोवर के साथ करेगा. वो डेजिग्नेटेड ऑफिशियल होगा. डेजिग्नेटेड ऑफिशियल हैज़ टू बी क्लियर्ड. नॉर्मली एन एग्जीक्यूटिव लेवल हु इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन कमेटी और रिव्यू कमेटी इज़ द डेजिग्नेटेड ऑफिसर हु विल कम्युनिकेट. कहीं एक जगह पे रिजर्व बैंक ये कहती है कि ये जो ऑर्डर्स होंगे ना डिक्लेयर करने के या डिक्लेयर करने की, इसका कम्युनिकेशन एक ही बंदा करेगा. शो कॉज नोटिस यही बंदा देगा. तो ये जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है इसका काम अलग तरीके से बन जाता है. उसको अप्रेजल, इवैल्यूएशन सब करना पड़ेगा. आइडेंटिफिकेशन कमेटी को देना पड़ेगा. शो कॉज जब नोटिस देना है वो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा. जैसे कि आपके आइडेंटिफिकेशन कमेटी एजिम लेवल का बंदा आ गया तो आप ये कम्युनिकेटिंग ऑफिसर जिसको पॉपुलर भाषा में नोडल ऑफिसर कहा जाता है, ये नोडल ऑफिसर का डेफिनेशन इस सर्कुलर में नहीं है, लेकिन एक बंदा जो हर तरह के कम्युनिकेशन ऑन बिहाफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन कमेटी और रिव्यू कमेटी बोरोवर के साथ करेगा. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही विल कम्युनिकेट. वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है उनके नाम भी देने. फॉर द फर्स्ट टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज स्टेटेड दैट ये जो कम्युनिकेशन करने वाला बंदा होगा उसे रिव्यू कमेटी के मेंबर्स के नाम और आइडेंटिफिकेशन कमेटी के मेंबर्स के नाम उसके कम्युनिकेशन में देना अनिवार्य है. दिस इज व्हाट द गाइडलाइंस इज करंटली स्टेटिंग.
जैसे कि मैंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोरोर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको भी आप अगर शो कॉज देते हैं और उसमें वो ऑब्जेक्शन लेता है कि भाई ये विलफुल डिफॉल्टर का जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो आपको आके बता दे कि रेजेस एन ऑब्जेक्शन दैट ही शुड बी ट्रीटेड एज एन विलफुल डिफॉल्टर। बात ध्यान में रखो, कंपनी है, पार्टनरशिप है, हर बंदा विलफुल डिफॉल्टर होने वाला है। आगे जाके आने वाली गाइडलाइंस कैसी हैं? तो अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आपने शो कॉज दिया और उसने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो या आपके सामने उसने एक्सप्लेन नहीं किया हाउ ही इज नॉट इन्वॉल्व, you have to ignore or remove his name from whatever the decision that you will take. You will not declare him as a willful defaulter, क्योंकि ये willful defaulter का आपका डिक्लेरेशन आने के बाद में पूरी दुनिया में फैलने वाला है via सिविल एंड via the reporting mechanism that is expected. तो आइडेंटिफिकेशन कमेटी और रिव्यू कमेटी की ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिस एग्जम्पशन इज देयर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन जो परमानेंट डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो सब विलफुल डिफॉल्टर की व्याख्या में आ सकते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु आर डूइंग इट। तो ये अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपके सामने आके ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, रीजनिंग नहीं देता कि उसका इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो इग्नोर करता है, ट्रीट हिम एज अ विलफुल डिफॉल्टर, सिंपल। यही डेफिनेशन इन्होंने इसमें दी है। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में कहते हैं कि जितने भी 25 लाख के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके हैं, एनपीए जो है, ये प्रोसेस करो विलफुल डिफॉल्ट है या नहीं है, प्रोसेस करो। विलफुल डिफॉल्टर का डिक्लेरेशन अगर आप ये प्रोसेस करने के बाद आपको लगता है एनपीए है नहीं है, पीए है नहीं है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। दिस इज सच ए स्ट्रॉन्ग वेपन एंड दिस स्ट्रॉन्ग वेपन हैज़ टू बी यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू रिकवर देयर ड्यूज, क्योंकि आप पूरी नकेल कसने वाले हो। यू आर गोइंग टू टाइटन देम द मोमेंट यू से दैट यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर आफ्टर कंडक्टिंग ए प्रोसेस इन द फाइनेंशियल मार्केट, नोबडी विल गिव देम मनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी। तो ये लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर रिजर्व बैंक के वेबसाइट पे भी आता है। आपको अपनी बैंक के लिए एक विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट बनानी पड़ेगी, वो रिपोर्टिंग इसमें हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वो लिस्ट कैसे बनानी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऐसी है कि इंडिविजुअल अगर आपके यहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर हो गया ये विद ड्यू प्रोसेस, और वो कहीं पार्टनर है या वो कहीं डायरेक्टर है और वो कंपनी भी आपसे बोरो कर रही है, तो यू हैव टू टेक एन एक्शन। व्हाट इज दैट एक्शन? यू हैव टू टेल द कंपनी और द फर्म टू रिमूव दिस फेलो, कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द मैनेजमेंट, रिमूव हिम, डोंट इवन टच विद द पेयर ऑफ टोंग्स टू द पर्सन और द इंडिविजुअल हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर। क्योंकि वो अगर बंदा किसी कंपनी में है तो वो कंपनी को भी आप विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर सकते हैं, तो दे हैव टू रिमूव दैट। एंड ये एनपीए के बारे में तो उनका ये कहना है कि एनपीए का आपने जितने भी आपके 25 लाख के ऊपर के एनपीए हैं उसकी ये प्रोसेस कर ली, और उसमें अगर विलफुल डिफॉल्टर कुछ बोरोर आ गए तो ये डिक्लेरेशन करना, ये तो सब बात आ ही जाएगी सर्कुलर के हिसाब के, आपकी पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन ये प्रोसेस आपको हर 6 महीने के बाद रिव्यू करनी है। क्या करना है आपको? 25 लाख के ऊपर के सब बोरोर लेना है। और ये सेटअप और सिस्टम क्या होगा? जो 7-8 पैरामीटर्स दिए हैं, वो पैरामीटर्स के ऊपर हर एक अकाउंट की जांच करनी है इंटरनली। यू टू स्कैन देम एंड दिस प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूड with a periodic interval and that periodic interval has to be decided by the board। मुझे ये लगता है कि ये प्रोसेस हम लोग अगर हर 6 महीने करेंगे, मार्च सितंबर, will be convenient and we will be able to, क्योंकि ये what is the periodicity, this has not been defined by them। एक बंदा आज विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, कल जाके हो सकता है। सो दिस री एग्जामिनेशन क्लॉज हैज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस हियर। और वो ये कहते हैं कि स्पेसिफिक मेजर अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर आपको क्या लेने हैं? आप क्रिमिनल एक्शन ले सकते हो। अब ये क्रिमिनल एक्शन के बारे में जो इन्होंने लिखा है, मेरा ये मानना है अगर ये विलफुल डिफॉल्टर है और इसने ये फ्रॉडुलेंटली किया है, क्रिमिनल एक्शन लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के गाइडलाइंस मैंने डिस्कस किए हैं वो देख लो एक बार, वो सुन लो, शायद है वीडियो चैनल पे है। अगर विलफुल डिफॉल्टर विथ फ्रॉड एलिमेंट, क्रिमिनल एक्शन इज अ मस्ट।
एंड देयर इज अ प्रोसेस. व्हाट इज द प्रोसेस? ये विलफुल डिफॉल्टर के लिस्ट में से अगर आपको नाम निकालने हैं तो प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू कर दिया तो वो विड्रॉ नहीं हो सकती. इट विल बी टेकन टू द लॉजिकल कंक्लूजन बाय द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई ये हमारा विलफुल डिफॉल्टर हो गया तो हम इसका पेपर में ऐड दे देते हैं, इसका फ़ोटो छपवा देते हैं, इसकी बदनामी करते हैं. 2016 में एक गाइडलाइंस इसके बारे में रिजर्व बैंक ने दी थी, लेकिन उसके बाद में इस गाइडलाइन में उन्होंने ये कहा है कि अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर है और अगर आपको उसकी फ़ोटो पब्लिश करनी है कहीं पे भी, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, कहीं पे भी हो, बोर्ड मस्ट हैव अ पॉलिसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी दे कैन पब्लिश द फोटो. आप जानते होंगे कि कई इंटीरियर की जो छोटी छोटी बैंक होती हैं वो डिफ़ॉल्टर लिस्ट उनके एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करती है. ये हमारे डिफ़ॉल्टर है भाई, उसमें विलफुल ये वर्ड होता नहीं है, लेकिन ये डिफ़ॉल्टर है उनकी लिस्ट, और उनका एनुअल रिपोर्ट बड़ा हो जाता है, नाम छप के आ जाता है. फ़ायदा क्या होता है? बैंक पैसा वसूल कर सकती है, वैसा पैसा वसूल करने में. लेकिन ये कहीं कहा भी नहीं गया है, नाइदर द BR एक्ट सेज दिस नॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट सेज दिस. अब रिजर्व बैंक ये कह रही है अगर आपको फ़ोटो पब्लिश करना है विलफुल डिफ़ॉल्ट के, वो प्रोसेस होने के बाद, आफ्टर डिक्लेरेशन दैट द पर्सन इज अ विलफुल डिफ़ॉल्टर, you can have a policy to publish them in certain medias. So that policy has to be there. और penal measure इन्होंने treatment of willful default में पैसे दे दिए है, penal and other measures against willful default. उसमें क्या कहते हैं? पैसा नहीं देना इनको, रिन्यूअल नहीं करवाना, पैसा वसूल करना, यही एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़. और विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट जो होगी, वो लिस्ट में से अगर ये विलफुल डिफ़ॉल्टर बाहर आ जाता है उसके बाद 1 साल पैसा नहीं देना है. सो दीज डेफिनेशंस उन्होंने कही है. जैसे कि कहते हैं कि कोई भी बैंक, इंडिया में कोई भी बैंक अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर तुम्हारा सिबिल देता है या फिर ये CIC कंपनीज देती है, उसको पैसा नहीं दे सकती है. कब तक नहीं दे सकती है? वो ये कहते हैं, क्लॉज ये है, नो क्रेडिट फैसिलिटी विल बी ग्रांटेड बाय एनी लेंडर for floating of new ventures to a willful defaulter or any entity with which a willful defaulter is associated for a period of 5 years after the name of willful defaulter has been removed by the lender from the list of willful defaulter. 5 साल. क्यों ये सीरियस सर्कल है? इसकी वजह ये है, आपको गलत तरीके से किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने का हक नहीं है. फिर उन्होंने 2-4 डेफिनेशन दिए हैं. कंपनी अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाती है तो उसकी सब्सिडी कंपनी भी विलफुल डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी. सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो विलफुल डिफ़ॉल्टर का जो कंसेप्ट है, ये आपके जो बोरोर के साथ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसमें आ जाना चाहिए. उसमें उनका स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है. द लेंडर शैल इनकॉर्पोरेट अ कॉवेनेंट इन द एग्रीमेंट वाइल एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू बोरोर दैट इट शैल नॉट इंडक्ट अ पर्सन हुज नेम अपीयर्स इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर ऑन इट्स बोर्ड और एज अ पर्सन इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. तो लिमिटेड कंपनी के जितने भी बोरोर्स हैं ये क्लॉज उनकी इसमें रहेगा. जनरल इसमें भी आप रख सकते हैं कि अगर बंदा कोई विलफुल डिफ़ॉल्टर है पूरी इंडस्ट्री में, उसको आप बोर्ड पे नहीं ले सकते, उसको मैनेजमेंट पे नहीं ले सकते हो, लेते हो हमसे पैसा मत लो. दिस इज़ टाइटनिंग, दिस इज़ एब्सोल्यूट टाइटनिंग. अगर बंदा है ऑलरेडी उसमें, आपको आज पता चला है, यू हैव टू टेक एक्शन टू रिमूव दैट पर्सन from the management is what they are saying. Initiation of legal action तो आप और हम सभी जानते हैं. ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए. आपका जो इंटरनल ऑडिटर है उसका ध्यान होना चाहिए. उसका ध्यान होगा तो आप उसको कैसे कंपल्सन कर सकते हैं? ये इंटरनल ऑडिटर्स को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमारी विलफुल डिफ़ॉल्टर की पॉलिसी है इसका अडियरेंस बैंक एज वेल एज बोरोर्स कर रहे हैं या नहीं है. दे कैन गो फॉर सैम्पल चेकिंग. आई डोंट नो बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल
for the internal auditors to scan the entire portfolio every time, every month. It's not possible. But they can devise a mechanism through which they can arrest, because early identification will enable the bank to recover its dues. और गारंटर की लायबिलिटी जो कि इन्होंने बात की है, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि गारंटर के पास अब नोटिस लेके जाओ, वो हमेशा कहता है कि पहले बोरोवर से वसूल करो फिर मेरे से करो। ऐसा नहीं है। उन्होंने लीगल प्रोविजन इस सर्कुलर में दी है, वो ये कहते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ द बोरोवर गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ बोरोवर। यानी आप ये भी कर सकते हैं, बोरोवर से पैसा मत वसूल करो, गारंटर के पास पैसा है वसूल करो। गारंटर ये नहीं कह सकते कि उससे तो नहीं लिए आप मेरे से वसूल दे। नो, वंस यू हैव गारंटीड यू आर ऑन पार विद द बोरोवर, यू आर ऑन पार विद द बोरोवर। तो ये मैंने सिंपल करने की कोशिश की है। आपको पढ़ना है, आपको सवाल आएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे, क्योंकि पार्ट 3 में हम लोग क्या देखने वाले हैं। पार्ट 3 इज अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स area where you have to be very clear. The part 3 is about the role of auditors more clearly, reporting of willful and large defaulters, ये इसमें होगा। और जो सर्कुलर और एक चीज़ उसमें कही है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रोल ऑफ ऑडिटर्स, ये अलग चैप्टर उन्होंने लिखा है, उसके बारे में, उन दोनों चैप्टर के बारे में नेक्स्ट संडे को हम लोग बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद सर्कुलर फिर से एक बार पढ़ो। कोई सवाल आता है, सवाल तो आएंगे, पूछो, या तो फ़ोन करके पूछो या फिर मेल में लिखो कि हमें क्या करना है। विल ऑल हेल्प यू इन इंश्योरिंग दैट यू कंप्लाई विद द सर्कुलर। आपके सब बोरोवर तो बिल्कुल डिफ़ॉल्टर होते नहीं हैं, इक्का दुक्का निकलते हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग आनाकानी करते हैं, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि यार छोड़ दो, क्या करना है, प्रोसेस बहुत गंदा है। रिस्क क्या है आपको? जिस बोरोवर को आपने छोड़ दिया वही बोरोवर रिजर्व बैंक के ध्यान में आ गया, क्योंकि रिजर्व बैंक, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि रिजर्व बैंक इस वक्त आपके स्टैंडर्ड एसेट्स भी वेरीफाई कर रहे हैं। सॉरी। तो रीपेमेंट रेगुलर है, वो विलफुल डिफॉल्टर है या नहीं है। 25 लाख के ऊपर कितने बोरोवर्स होते हैं? इंश्योर दैट the mechanism which exists in the credit department or the recovery department of the bank, you put up one person on the job कि भाई ये 25 लाख के अकाउंट है ना, स्कैन करो हर 6 महीने में। वो स्कैन में क्या क्या करने का, दैट यू कैन डिफाइन। कि इनका टर्नओवर देखना है, इनके ट्रांजैक्शन कहीं और हो रहे हैं या नहीं हो रहे देखना है, एसेट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है देखना है, इनके बोर्ड पे कोई विलफुल डिफॉल्टर वाला बंदा तो नहीं बैठा है, इनका मैनेजर तो कहीं विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिवाइज दी कंडीशंस फॉर स्कैनिंग। द कंडीशंस फॉर स्कैनिंग हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। आपको क्या देखना है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आप ये पढ़ो, दोनों वीडियो देखो, पढ़ो। वी स्टिल हैव टू टॉक फॉर अनदर 30-40 minutes which we will do on next Sunday. I have always been helping the urban cooperative banks to ensure that they remain compliant with the Reserve Bank of India guidelines. Be a compliant bank. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं जो कहता हूँ आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, सवाल पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 25,000 लोग कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, और तुम सब्सक्राइबर देखो हमारे 3,500 के आसपास है। दैट मीन्स दैट इज द टारगेट। We have to reach 25,000 subscribers, and that's where you can help. You can ask all your staff members, employees, directors, and as far as this circular is concerned, even your customers, they can subscribe to the channel. They will get the notification in time. Normally Sunday को 11 o'clock सवेरे 11 बजे शो एयर होता है। तो till we meet again next Sunday at 11. Thank you so much for watching.